आप एलियंस में बिलीव करते हैं? Enceladus के लिए एक मिशन प्लान हो रहा है. It is to confirm whether life existed or not. Life on Venus. Mars the moon. On an asteroid called Venu. Ceres. Titan. Pluto. मुझे लगता है अपना पूरा होमवर्क करके आए हो. You're just testing me. Hello everybody, welcome to episode 46, the Dusshera special of Vartalap with Aakriti, and today's show is extremely special because आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने ज्यादा जगह नहीं सुना होगा, स्पेशली इन इंडिया एंड हिंदी में. तो आज मेरे शो में बड़े ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं and let me tell you why I decided to choose the topic that I chose. The topic is alien life. And because it is Dusshera today, I feel that Dusshera is all about the victory of the good over the evil. Dusshera मतलब किसी नेगेटिव चीज पे, जैसे रावण था, he was the negative, the villain of the mythology. उसके ऊपर the victory of the good. And in the past few years, if you see, जितनी भी मूवीज आती हैं ऑन एलियन लाइफ, मोस्टली वी सी कि एलियंस को ना एकदम ऐसे नेगेटिव दिखाया जाता है, दैट ऑल द एलियंस आर गोइंग टू कम ऑन द प्लैनेट अर्थ टू remove the life from planet earth, to kill us all, to eat us all and all of that. So is alien life actually that bad, or the question is, do alien life actually exist? And because of all these questions, see, one of our guests, Karan, hi, how are you, Karan, is saying baby aliens are real. Baby aliens are real. Why do you know aliens are only babies? Aliens can be massive also. No, kill us, study us. Okay, aliens are coming on planet Earth to study us. Well, there are many stories. कहीं पे बोलते हैं कि alien abduction की stories बहुत सारी सामने आती हैं. Area 51 की बात होती है. And on the other hand, scientists are still not sure if we have already encountered alien life or no. And there are many more questions that I have in my mind. And to solve all these questions, today I've got a very special guest. He is the head of Center of Excellence in Astrobiology at Amity University. He is leading an initiative to establish India's first ever dedicated center for astrobiology and space biology in India. He is also the sample collection and research scientist at NASA. I'm sorry if I'm saying it wrong because मुझे ज़्यादा साइंस के बारे में नहीं पता है भाई साहब. मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है साइंस में, बट वी ऑलवेज लाइक कि अरे साइंटिस्ट से कैसे बात करें, क्योंकि स्पेस साइंटिस्ट एकदम कॉमन ब्रीड नहीं है, बहुत अलग लोग होते हैं, दिखते भी नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं. लेकिन मैंने स्पेस साइंटिस्ट को ढूंढा है India mein, and I'm one of those fortunate enough who's going to be talking to one of the astrobiologists of our country. Okay, now he has studied so much. आपको पता ही है यार, नॉर्मल पढ़ने में हम लोग की लग जाती है. यहाँ पे ये जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं आज, उन्होंने बहुत बहुत सारा पढ़ा है. He has done BTech in aerospace engineering from India. He has done MS in space system engineering from Netherlands. He is also a PhD in aerospace engineering from Australia. He has worked with NASA. Okay, and too many feathers on his hat. So please give digital applaud, yay, to my guest, and let me invite astrobiologist and research scientist, Mr. Siddharth Pandey. Hi. Hi Aakriti, can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? Okay. बहुत बढ़िया, आप बताओ. मैं भी ठीक हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बहुत कभी कभी आते हैं हमारे शो पे. आपसे ज्यादा आई एम नर्वस बिकॉज इतनी कैजुअल कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत कम करी है, क्योंकि मुश्किल होता है कैजुअल करना, बिकॉज इट इज सच अ टॉपिक कि आप धीरे धीरे सीरियस हो ही जाते हो, एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि नहीं यार, रिलैक्स कॉन्वर्सेशन है, आराम से बात करनी है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग इन समवन्स पार्टी एंड जस्ट कैजुअली कैचिंग अप कि क्या बात हो रही है, किस चीज पे काम हो रहा है क्या. तो वही स्टेट ऑफ माइंड आई विल ट्राई टू इंश्योर दैट वी जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग एंड टॉकिंग. Absolutely. Actually, the concept of the show is also such. मैं यहाँ पे लोगों को लेके आती हूँ and I try to make them comfortable to have a casual chat.
ठीक है, तो या आपको हम कैसे कंफर्टेबल करें सिद्धार्थ? वैसे तो सबसे पहले आपकी जैसे गुड लुकिंग साइंटिस्ट हमने नहीं देखे हैं, तो अरे बाप रे आप बाप। कैसे साइंस में आ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कहने की बातें होती हैं। एक्चुअली मैं बहुत बचपन से इंटरेस्ट था। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा। शी वॉज एन इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। तो जब उनका स्पेस शटल वापस आ रहा था, उस टाइम में 9th स्टैंडर्ड में था। एंड जब इंसिडेंट हुआ था 2003 की बात है, मतलब आज से कितने साल हो गए, 17 साल की बात, 17 साल पहले की बात थी। तो जी। उस टाइम तक मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मतलब जस्ट योर रेगुलर एवरेज गाय। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, थोड़ी बहुत मस्ती चलती थी। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ता है, आपको भी पता है, 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th तक, मतलब पेरेंट्स और सब सोसाइटी आसपास घिस देती है कि भाई। एंड मैं दिल्ली में था, एंड दिल्ली में रिलेटिवली आई थिंक बॉम्बे से ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे व्हेन यू आर ग्रोइंग अप जी। इन दिल्ली। कंपटीशन भी ज्यादा होता है, तो मतलब या वही है, इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, वही हिसाब होता है। बट मेरा था कि यार इंजीनियरिंग अगर करनी है तो ऐसी चीज में करनी है जिसमें इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कह रहे हैं तो करनी है। और मतलब अगर मुझे इस फील्ड में नहीं घुसना होता तो मैं शायद इंजीनियरिंग नहीं करता। तो वो ये था कि इस फील्ड के साथ पैशनेशन था, तो यू काइंड ऑफ स्टे ऑन इन दैट फील्ड। एंड धीरे धीरे करते करते, मतलब एक के बाद एक होता गया, होता गया। एंड बिफोर आई न्यू इट आई वाज, मतलब हुआ क्या कि जब हम लोग कॉलेज में घुसते हैं तो सबका इंटरेस्ट होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो 4 साल बाद बोलते हैं भाई हो गया, अब हमें फील्ड चेंज करनी है। तो कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई डॉक्टरी में चला गया, कोई लॉयर बन गया। मैं था एक पागल अकेला। आई वाज लाइक चलो लेट्स जस्ट कीप डूइंग दिस एज मच एज पॉसिबल। और कुछ इंटरेस्ट थे नहीं लाइफ में। और कुछ आता भी नहीं था। तो धीरे धीरे करते करते यू रियलाइज कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव वन इंटरेस्ट एंड स्टिक ऑन विद दैट इंटरेस्ट। तो आई थिंक वही एक स्ट्रेंथ थी। बाकी कोई ऐसा स्मार्ट जीनियस या कुछ ऐसा, मतलब एक परसेप्शन होता है कि सारे स्पेस साइंटिस्ट आर लाइक नेक्स्ट लेवल जीनियस, बट दैट वाज नॉट द केस। आई थिंक इट वाज जस्ट वन साइटेडनेस की ये चीज है तो बस इसको करना है टाइप। तो बस वही था, दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू द फील्ड। You were into engineering, you did aerospace engineering, and now you're an या astrobiologist. So, या how come या from engineering to biology and that to astrobiology, you landed up where you are? हाँ, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें कैसे होता है कि यू कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग, मतलब मैं सोचता रहता था कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ठीक है, स्पेस शटल अच्छी बात है, स्पेस अच्छी बात है, बट उसके अंदर भी मतलब क्या है जिसमें एक्साइटमेंट है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। और मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात स्पेस की यही है कि टू फाइंड एलियंस, टू फाइंड वेदर वी आर अलोन और नॉट। हमारे Yeah. जैसे और जीव प्राणी क्या दूसरे एक जहान में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो उसको एक डिस्कवर करने का एक मेरे अंदर पैशन था। एंड उसको समझने के लिए मुझे इंजीनियरिंग रोल से निकल करके एक थिंकिंग रोल, जो कि एक साइंटिस्ट के रोल में जाना था। तो उसको करने के लिए प्रोसेस होता है, मतलब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेते हो। मतलब इनिशियली एक इंजीनियर था, एज एन इंजीनियर काम करता था। इंजीनियर का क्या काम होता है कि ही सॉल्व्स द हाउ, कि आप कैसे करोगे। इंजीनियर इज द पर्सन जो फिगर आउट करता है कोई भी प्रॉब्लम को कैसे करना है। और साइंटिस्ट वो होता है जो पूछता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जी। तो मुझे वो कैसे करना है, इसे क्यों करने वाले सिचुएशन में धीरे धीरे ट्रांजिशन होना था, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसका क्या पर्पस है। तो वो एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके अंदर में आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हो। आप अपने साथ, मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग विद अदर पीपल जो कि साइंटिस्ट थे रादर देन इंजीनियर्स थे। और मैंने थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी, जियोलॉजी पढ़ा। फिर मैं ट्रांजिशन किया फ्रॉम एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मतलब एरोस्पेस इंजीनियर वो होता है जो कि मतलब पार्ट्स बनाता है, कोई भी मतलब सैटेलाइट के इक्विपमेंट, टेक्निकल चीजें करता है। एंड साइंटिस्ट जो होता है वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंट प्लान करता है, वो इंजीनियर्स को बताता है कि इस तरीके से करना है, मतलब वो था। तो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन जो डिजाइन बताए कि मतलब हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो उस रोल में ट्रांजिशन करना था। तो जैसे कि आपने बताया, मैं बाहर था, मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था, एंड वहां पे अपॉर्चुनिटीज मुझे काफी अच्छी मिली, अच्छे लोगों से मिला, अच्छे लोगों के साथ जी। बैठा, घूमा फिरा। तो धीरे धीरे अपने आप ही मतलब इंस्पिरेशन आता गया कि हाँ, इस तरह का काम जो लोग कर रहे हैं मुझे भी उस तरह का काम करना है। फिर धीरे धीरे करके करते, मतलब आई विल नॉट से आई एम स्टिल एन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी, बिकॉज एक बहुत बड़ी फील्ड है एंड बहुत बड़ी। इट इज अ वेरी वेरी लार्ज फील्ड, so it takes time, but I've kind of taken that direction now.
यू आर वर्किंग इन अ फील्ड जिसके बारे में कोई टेक्स्ट बुक है ही नहीं, आप लोग बना रहे हो टेक्स्ट बुक जिससे कि हम लोग पढ़ पाए। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इतना सिंपल रखें जिससे कि मतलब आपसे बात करने का भी एक ये आसान चीज नहीं है, बिकॉज इसमें मेहनत लगती है हमारे तरफ से। और मतलब मेरा ये समझना है कि मेहनत हमें करनी चाहिए, समझाने में आसानी हो जिससे कि, ना कि बिल्कुल। जो सुन रहा है उसको मतलब उतनी मेहनत होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सिस्टम में उल्टा होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में टीचर बोलते हैं कि भाई ये चैप्टर है, अब आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं तो मतलब आप इसको बगल में रख दो। तो वो एक बहुत गलत ना चीज है, मेरा उसकी तो वजह पूरा से। साइंटिफिक करियर ना मेरी साइंस टीचर की वजह से खत्म हो गया। मेरी साइंस टीचर वाज सो बोरिंग। मुझे लगा कि ये तो नहीं पढ़ सकते भाई। तो हाँ, आई एम तो श्योर कि बल्कि आपके जैसे टीचर्स हैं तो बहुत सारे लोगों को मन करता होगा और पढ़ने का, आगे जाने का। यू आर एक्चुअली लीडिंग एन इनिशिएटिव इन इंडिया जहाँ पे एस्ट्रोबायोलॉजी के ऊपर, स्पेस बायोलॉजी के ऊपर पहली बार एक एसोसिएशन बन रहा है। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। श्योर श्योर श्योर। तो ये हम लोग, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर मैंने लास्ट ईयर ही हम लोगों ने एस्टेब्लिश करा है। बहुत ही नया सेंटर है। एंड इंडिया में बहुत सारे बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटीज में, आईआईएससी में। तो हम लोग वो क्या कर रहे हैं कि बिकॉज हम लोग एक नया इंस्टीट्यूशन है, हम उनके कोलैबोरेशन में सेटअप कर रहे हैं। तो हमारे काफी सारे कोलैबोरेशन के जो साइंटिस्ट हैं वो ही बड़े बड़े पुराने इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा पर्पस यही है, हम लोग यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग मौका देते हैं। प्लस हम लोग पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए भी वर्कशॉप करते हैं। जैसे फरवरी में मैंने मुंबई में एक वर्कशॉप कराई थी, इट वाज कॉल्ड स्पेस फॉर एवरीवन। तो ओके। जो लोग जिन्होंने हमेशा एक सपना रखा है कि वो लोग स्पेस या साइंस के बारे में पढ़ना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो अपने करियर में कुछ और करने लग गए, तो वी वांटेड टू गिव देम अ चांस। तो हमने अराउंड 15-20 लोगों को बुलाया था, एंड होपफुली जब ये लॉकडाउन खत्म होगा वी विल डू दैट अगेन। तो आई एम हम देयर, लोग का आई एम पर्पस ये कमिंग। है। सिद्धार्थ, आई एम कमिंग, आई बिल्कुल वांट टू कम। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारा यही पर्पस है कि हम लोग, बिकॉज स्पेस लोग समझते हैं कि सिर्फ जो लैब कोट पहन के लैब के अंदर बैठते हैं सिर्फ उन लोगों की फील्ड है। स्पेस सबके लिए। आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट की स्पेस फॉर एवरीवन। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आदमी लॉयर है या बैंकर है या एक्टर है आपकी तरह या मॉडल है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं हम लोग एजुकेशन एंड पब्लिक आउटरीच। तो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसमें हम लोग एस्ट्रोबायोलॉजी फील्ड को लेकर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं साइंस की तरफ। भाई आओ, समझो, एंड यू आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अबाउट योर प्लैनेट, अबाउट एवरीथिंग। तो ये एक पॉइंट है। एंड रिसर्च, ऑफ कोर्स हम लोग का रिसर्च होता है इसके अंदर में। हम लोग अलग अलग चीज करते हैं। हम लोग एक फील्ड वर्क करते हैं, जैसे हम लोग मार्स, हम लोग का पॉइंट ये है, हम लोग का मेन जो एग्जिस्टेंस है एज अ फील्ड, कि हम लोग वी वांट टू कंफर्म कि मार्स के सरफेस पे पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। ये एक बहुत जी। बड़ा ओपन क्वेश्चन है जो कि अभी तक आंसर नहीं हुआ है। एंड उसके प्रति हम लोग मतलब अलग एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं, अपने लैब में डिजाइन करते हैं, एंड उनको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो कि दिखने में, और जहाँ की मिट्टी, जहाँ की हवा, जहाँ का पानी मार्स से सिमिलर है। तो जी। मार्स एक टाइम पर, आज से बहुत करोड़ों साल पहले, मार्स की सरफेस पे पानी था। मार्स एक गर्म प्लैनेट था, मार्स में एटमॉस्फेयर था। तो हम ये समझना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे पानी था, अगर वहाँ पे हवा था, वहाँ पे भी थोड़ी धूप आती थी, तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। तो वो समझने के लिए हम लोग आज के टाइम में अर्थ पे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इस तरह के एनवायरनमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर से लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट है। मार्स पे तो अभी भी पोलर कैप्स पे आइस को पाया गया है। वी हैव सीन वाटर ऑन मार्स, तो आई थिंक द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। एक इट इज मैंने टॉक इंक्रीज। सुना था जिसमें बोला गया था कि मार्स पे अगर लाइफ होगा तो सब सरफेस लाइफ होगा। जी बिल्कुल, दैट्स राइट। वेरी नाइस। आप तो मतलब यू हैव ऑलरेडी क्वाइट अपडेटेड, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो द थिंग इज कि I'm मार्स a का जो big सरफेस fan. है। I'm a big जी fan of Neil deGrasse Tyson, and I watch his show regularly. It's called Star Talks. यस मेरा तो यस सपना है यस कि यस। मैं उनके जैसा कोई शो कर पाऊँ। और आप जैसे लोग अगर आते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑन द शो, सो आई फील ऑल द मोर एक्साइटेड कि मुझे इंडिया से कोई एब्सोल्युटली। मिला जो ऐसी बातें करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्स मार्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जमीन के नीचे जाएंगे तो वहां पे रेडिएशन नहीं पहुंचता। टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, एंड प्रेशर भी थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जो वाटर है अभी जो सरफेस पे पाया जा रहा है, दैट इज इन आइस फॉर्म, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। वेर एज
लाइफ रिक्वायर्स मोस्टली लाइफ जो हम लोग आसपास देखते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में पानी चाहिए होता है फॉर इट टू सर्वाइव. तो अभी सारे के सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं दे आर ट्राइंग टू सेंड मोर एंड मोर मिशंस टुवर्ड्स मार्स टू कंफर्म वेदर लाइफ कैन बी फाउंड और नॉट. जी. अभी रिसेंटली परसिवियरेंस गया है मार्स पे. इट विल टेक इट 6 months टू रीच मार्स. उसके साथ में वी हैव अ हेलीकॉप्टर. इट्स कॉल्ड इंडिजिनिटी, एम आई राइट? विच इज गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मार्स. वो कितना हमें हेल्प करेगा लाइफ के बारे में जानने के लिए? तो दैट रोवर परसेवरेंस उसका मेन टास्क ही यही है. इट्स एन एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन. इट इज टू कंफर्म वेदर लाइफ एग्जिस्टेड और नॉट. एंड इट इज लैंडिंग इनसाइड अ क्रेटर. क्रेटर एक ऐसी चीज है जो फॉर्म होती है जब एक मीटेराइट आता है, स्ट्राइक करता है स्पेस से, एंड एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है. तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर वाइड गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा है. सो इट इज लैंडिंग ऑन द एज ऑफ द गड्ढा. एंड वहां पे क्यों जा रहा है? बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गड्ढा पानी से भरा हुआ, तो वहां पे एक पानी का बॉडी था, लेक थी वहां पे. एंड नाउ इट इज नॉट देयर एनीमोर, इट हैज ड्राइड अप. मगर जब वो बॉडी लेक थी तो वहां पे धीरे धीरे जो रिवर्स आकर के, स्ट्रीम्स आके डिपॉजिट कर रही थी मिट्टी, तो इट माइट हैव ब्रॉट सम लाइफ फॉर्म्स ओवर टाइम एंड दे माइट हैव डाइड एंड सेटल डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ दैट क्रेटर. तो वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है. एंड जो आप रोवर, जो उस पे आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट टाइम कि हम एक दूसरे प्लैनेट के ऊपर में एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहे हैं, जो कि मतलब वहां के हेलीकॉप्टर जो होता है वो एयर को मतलब नीचे की तरफ पुश करता है, इसलिए उड़ता है. तो मार्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है. इट इज लाइट, मतलब बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, मगर है. इट इज नॉट लाइक द मून. मून में एकदम वैक्यूम है. इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, whereas Mars has an atmosphere. तो like helicopters on Earth, you can travel more distances in less amount of time. तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप हेलीकॉप्टर भेज रहे हो. दिस इज अ टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन. इसका ये पर्पस होता है कि ये हम लोगों को वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वहां पे हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर पे. इसका मेन पर्पस है कि वहां पे जाके दिखा रहा है कि काम करेगा कि नहीं काम करेगा. So once they have confirmed कि yes, this technology will work, then they will send some more substantial kind of drones and things like that, जिसके ऊपर में और instruments लगे रहेंगे. But ये भी एक बहुत बड़ी चीज है for it to do that. So it is very exciting that in the next 6-7 months we'll have something landing there. I know it is very exciting, and I think most people don't know, but it is extremely difficult to fly an object on a different planet. क्योंकि अर्थ के ऊपर conditions are very different. यहाँ की gravity अलग है, यहाँ पे air pressure अलग है, यहाँ पे आपको fly करने के लिए your weight is only different. But then doing the same thing on a different planet is very challenging, and I saw that video of NASA जहाँ पे वो बता रहे थे कि कितनी मुश्किल हुई इसे बनाने के लिए. Recently अभी न्यूज आई, ओसाइरिस REX ये लैंड हुआ है ऑन एन एस्टेरॉइड कॉल्ड बीनू. और पहली बार एक एस्टेरॉइड को डग करके उसके सब्सटेंस पे रिसर्च किया जाएगा. आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग इट टू ISS. तो क्या इम्पोर्टेंस है इसका, एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गो एंड एक्सप्लोर द एस्टेरॉइड्स? तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं दे आर लाइक द, जब आप अपने एग्जांपल सोचो, आप केक बनाते हो, you cook, you bake? A little. Okay. तो आप जब भी खाना बनाते हो, जैसे अगर आप कोई भी केक बनाते हैं, अगर मैं केक बनाता हूँ तो उसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, जो क्रम्स होते हैं, जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आर दैट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था तो सारे प्लैनेट्स बन गए, मून बन गया, मार्स बन गया, जुपिटर बन गया. तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स थे दे फॉर्म द एस्ट्रॉइड बेल्ट. तो मार्स का जो ऑर्बिट है, आप इमेजिन करो कि सारे प्लैनेट्स लैप मार रहे हैं, दे आर डूइंग लैप्स इन सर्कल्स. तो मार्स का जो लैप है एंड जुपिटर का जो लैप है, उन दोनों के बीच में जो एरिया है, वहां पे एक प्लैनेट बनना चाहिए था, वो प्लैनेट बना नहीं. तो अभी भी जो टुकड़े हैं, जो क्रम्स बने पड़े हैं जी. तो ये जो प्लैनेट था वो बना नहीं क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए? देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस. एक प्लैनेट को बनने के लिए, कैन यू हियर मी? Yes, I can. हाँ, एनी प्लैनेट को बनने के लिए उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास होना चाहिए उन पर्टिकुलर पीसेस को, कि वो धीरे धीरे ऑर्बिट करते करते कोलिस होए एंड देन फॉर्म होए. एंड यस, इट नीड्स टू नॉट हैव टू मेनी ग्रेविटेशनल पुल्स. तो जुपिटर का पुल होगा, बट मेन रीजन ये था कि देयर वाजंट इनफ मास इन प्लेस फॉर इट टू फॉर्म कोलिस एंड फॉर्म इनटू अ प्लैनेट. तो
why is it important to study asteroids? It is important क्योंकि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको जब हम एनालाइज करेंगे, ये रॉ मटेरियल्स हैं. इसके अंदर से ये मतलब जो एक घर बनता है, घर अगर आप सोलर सिस्टम को घर समझ लो, केक समझ लो, घर समझ लो, जो इसका एक रॉ मटेरियल है वो है. तो आप अगर वो समझोगे, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे, आपको समझ में आएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसके इनिशियल जो की एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे. So it is very important to study asteroids from that perspective to understand कि हमारा solar system, how did it come into being. So this mission actually, it was a very successful mission. It went down and you can almost say it did a high five. It went, it had a small pad and वो asteroid की तरफ गया and it just went and touched it and it was able to grab onto the material and capture it and it is going to come back and I think next year it will be approaching on. Oh, I thought it stayed on the asteroid for 2 days. Was it just a high five? Yes, it was a touch, collected, and then got back. In fact, there is a video you can find. It is very cool. It has been made into a GIF also, that it is going down. You can see the surface of the asteroid touching, and then it comes back. Wow, it's so cool. So the question of the century, आप aliens में believe करते हैं? Believe बहुत strong word है. Believe करने के लिए आपके पास proof होना चाहिए. अगर आप मुझे पूछेंगे आप क्या मुझे लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, टू व्हिच आई विल से देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड, यस इट इज पॉसिबल. क्या अभी एग्जिस्ट करते हैं कि आज से 2 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे, हमें नहीं पता. लेकिन अगर आप जस्ट शेयर नंबर्स देखोगे, हमारा जो सन है वो एक स्टार है. इस तरीके से 200 बिलियन स्टार्स हमारे गैलेक्सी के अंदर हैं एंड इस तरह से 300 बिलियन गैलेक्सीज हमने काउंट करी हैं. तो ये बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात होगी कि सर यहाँ पर आकर बना है, वहां पे क्यों नहीं बना. तो जस्ट बाय द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी द स्टेक्स आर हाई कि लाइफ कैन हैव स्टार्टेड, कहीं और लाइफ भी बनी होगी. मगर हो सकता है कि वो लाइफ बन गई और खत्म भी हो गई. हो सकता है कि वो लाइफ बनी नहीं है, आज से 2 करोड़ साल बाद बनेगी. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेस, इट इज अबाउट टाइम ऑल्सो. हमें नहीं पता कि जो कहानी यहाँ चल रही है वो कहानी कहीं और शुरू हुई, खत्म हुई, नहीं हुई. क्या वो सेम टाइम पे चल रही है जब यहाँ चल रही है. So there are many different parameters in the equation, and that is what makes it exciting. अगर कोई मुझे बोले कि एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते और हम वो प्रूव कर दें कि एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते, वो भी उतना ही इक्वली मेरे लिए एक्साइटिंग है जितना मेरे लिए एक्साइटिंग है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं. बिकॉज बोथ ऑफ दोज कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी ट्रेमेंडस. अब हमें लगता नहीं है कि जब इतने सारे प्लैनेट्स हैं, अभी तो हमने एक्सप्लोर भी कर लिया है इतने सारे एक्सो प्लैनेट, सुपर अर्थ्स, और इसके बाद भी अगर हम कहें कि कहीं पे लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ईगोइस्टिक कि हम लोग इतने ईगोइस्ट हो गए कि हमारे पास ही है, वी आर द मोस्ट सुपीरियर इन दिस एंटायर यूनिवर्स. दैट्स नॉट राइट. आई जेन्युइनली बिलीव कि लाइफ है एंड कहीं ना कहीं तो है, और मुझे लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ होगी जो हमें ऑब्जर्व करें लाइक गिनी पिग्स. इज इट पॉसिबल? It is possible. It is very much possible that they completely ignore us, that they are completely not interested in us. जिस तरीके से अगर आपके फ्लोर पर एक चींटी जा रही है, तो you are not interested to tell the चींटी कि hi, I exist, right? You're not going to the चींटी and telling कि मेरे से बात करो, मुझे देखो, मुझे समझो. So there might be different beings that are looking at us. They know that we exist, but they are not coming in our face and telling us, we are there, we are not there. They don't put in the energy to do that. They already know us, and these are all possibilities. So साइंस ऐसी चीज है जो फैक्ट बेस्ड होता है. जब आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हो, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो एंड यू इंश्योर कि वो चीज यस रेगुलरली मिल रही है, देन इट इज अ वेरी स्लो एंड बोरिंग प्रोसेस. इट टेक्स टाइम टू कंफर्म समथिंग, बट इट आल्सो रिवील्स सम थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली आउट ऑफ दिस मतलब imagination. It is even better than fiction, like they say. So it is a long really process. exciting. You know how come I got interested in all this? So I think I was some 8-9 years old and that time डिस्कवरी मैं बहुत देखती थी, बचपन से देखती थी डिस्कवरी. तो आई थिंक उधर एक शो था स्टीफन हॉकिंग्स का एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट एलियन लाइफ. आई डोंट नो अगर आपने देखा है तो. ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ दैट कुड एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कार्बन बेस्ड लाइफ, सिलिकॉन बेस्ड लाइफ. एंड तब से मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया, मुझे लगा वाओ, वी कैन एक्चुअली सी दीज काइंड ऑफ बीइंग्स एंड दे कैन बी इंटेलिजेंट. एंड इट वाज रियली रियली एक्साइटिंग फॉर मी. आप तो उस फील्ड में काम कर रहे हो, आपको लगता है कि इस तरीके की लाइफ हो सकती है? लाइक अभी तो हम मोस्टली कार्बन बेस्ड लाइफ ही एक्सप्लोर कर रहे हैं. कैन वी आल्सो हैव सिलिकॉन बेस्ड लाइफ? सो आई वाज सेइंग कि मैं बता रही थी आपको कि मैंने वो शो देखा था स्टीफन हॉकिंग्स का और उसके बाद से मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया.
अभी तो हम जैसी लाइफ जानते हैं तो हम कार्बन बेस्ड लाइफ जानते हैं, लेकिन एक शो पे मैंने ये भी देखा था कि अगर लाइफ दूसरी तरीके से भी हो सकती है, जैसे जो एक और हमारा मून है, आई थिंक जुपिटर का मून है टाइटन, उसके ऊपर होगी तो सैटर्न का सिलिकॉन मून है बेस्ड जी। लाइफ होगी। जी 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 जी, सैटर्न का मून है। सैटर्न का, ओके सॉरी, माय बैड। एंड एंड यस इट इज पॉसिबल, बट कैसे होगी, कैसे एग्जिस्ट करेगी, वो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। बिकॉज जिस तरह की लाइफ हमने अर्थ पे देखी है, हमारे पास सिर्फ उसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि इस तरह की लाइफ हो सकती है। थियोरेटिकली यस, आप बोल सकते हो कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हमें नहीं पता है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगी। बिकॉज लाइफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जिस तरह के रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, उनको समझने के लिए हम लोगों को एक कोई सैंपल सेट चाहिए। एंड जो एग्जिस्टिंग सैंपल सेट हमारे पास अभी है, उसके बेसिस पर हम अपनी खुद की लाइफ नहीं रिक्रिएट कर सकते। अगर आपको कोई बोले कि अगर मुझे एक छोटा सा सेल, मुझे एक बैक्टीरिया लैब के अंदर क्रिएट करना है, हम नहीं कर सकते। हमारे पास अभी तक खुद की लाइफ को ही समझने के लिए वी डोंट हैव इनफ, यू कैन से, इनसाइट इनटू दैट कि कैसे एग्जिस्ट करती है। बट यस, थियोरेटिकली स्पीकिंग यस इट इज पॉसिबल कि कार्बन की जगह क्योंकि कार्बन एंड सिलिकॉन आर क्वाइट सिमिलर इन द वे दे फॉर्म बॉन्ड्स। उनकी जो एनर्जीज होती है, हर एलिमेंट की एक एनर्जी लेवल होती है जिसको एक्सीड करना होता है उसको एक मॉलिक्यूलर बनाने के लिए। एंड जो हम जी ऑर्गेनिक्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक्स क्या होता है बेसिकली? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली ये तीन कंपाउंड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। वो जितने जितने कॉम्प्लेक्स चेन्स बनते जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, देन दे फॉर्म अमीनो एसिड्स, एंड दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो वी हैव फाउंड ऑर्गेनिक्स में, जो कि कार्बन बेस्ड हैं, वी हैव फाउंड अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द यूनिवर्स। हमें जो एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटराइड्स हैं, उनके अंदर हमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिले हैं जो कि वाटर के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में, दे हैव फॉर्म दिस काइंड ऑफ चेंज। बट सिलिकॉन का अभी तक हम लोगों को उतने प्रेवलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। So the probability for it to form the kind of life, carbon-like life, it is less based on our current understanding. But ऐसा हो सकता है। अभी टाइटन पर एक मिशन is being planned to launch 2028 में। एक मिशन जा रहा है, उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई फ्लाई। ऑल्सो इट इज ऑल्सो हेलीकॉप्टर मिशन। इट विल बी हैविंग रोटर ब्लेड्स होंगे, वो फ्लाई करके हॉप करते करते जाएगा। बिकॉज टाइटन एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सरफेस पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है, नॉट वाटर, इट इज लिक्विड मीथेन। इट इज वेरी वेरी कोल्ड। इतना ठंडा वर्ल्ड है, इतनी ठंडा जगह है कि वहां पे गैसेस जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो गैस अर्थ पे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वहां पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे यूनिक इन्वायरमेंट पे हमें खुद नहीं पता है कि किस तरह की रिएक्शंस हो चुके होंगे, एंड इतने सालों से वो एग्जिस्ट कर रहा है, करोड़ों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। तो that is the beauty of life. It is complex and it is also beautiful because it can do so many different things which we still do not have a complete understanding कि वो कैसे फॉर्म करेगी। जैसे अर्थ पे एक वाटर साइकिल होती है, यहाँ पे बारिश में पानी आता है, लेक में कलेक्ट होता है, देन इट गेट्स इवेपोरेटेड। हमने जैसे पढ़ा था स्कूल में वाटर साइकिल, उसी तरह से एक नाइट्रोजन साइकिल भी होती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ओवर टाइम, सेम टाइप ऑफ एक्सचेंज टाइटन पर भी हो रहा है। वहां भी बारिश होती है, वहां भी बादल बनते हैं, वहां पे भी पानी लेक्स में फ्लो होता है, वहां पे बीचेस हैं, सैंड है, रॉक्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो वी कैन नॉट प्रूव इट अनलेस वी गो देयर। जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, जब तक हम कुछ सैंपल नहीं उठाएंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। बट आई एम गेसिंग इन द नेक्स्ट 10 years और सो हम लोग के पास और ज्यादा आंसर्स होंगे। बिकॉज आज से 10 साल पहले हमें ये भी नहीं मालूम था कि मार्स पे पानी था कि नहीं। तो जी साइंस टेक्स टाइम, बट इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। right, it does take time, and there is another moon called Europa, जहाँ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड वाटर है, तो बहुत ठंडा है। तो उधर कुछ साइंटिस्ट है जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पानी में अंदर देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिंग wherein you will have normal temperature for life to exist। जी तो जी उस जी। पे हम कोई मिशन भेज रहे हैं, हाउ फार इज इट? Saturn is far away. I mean, Titan भी दूर है, लेकिन Enceladus जो है, Enceladus के लिए एक मिशन प्लान हो रहा है around the same time as Titan also. And Enceladus and Europa, Europa Jupiter का मून है, it is slightly closer.
and Enceladus जो है it is another similar moon of Saturn, so it is further away. एंड ये दोनों मून्स जो हैं ये आइसी मून्स हैं, इनका जो सरफेस है वो पूरा आइस से कवर्ड है. थिंक अबाउट इट लाइक एंटार्क्टिका, इट इज कम्प्लीटली कवर्ड इन आइस. एंड अंडर द सरफेस आप 20 किलोमीटर अगर आप नीचे ड्रिल करोगे आइस का, तो उसके नीचे वहां पे एक लिक्विड वाटर हैज बीन कंफर्म, लिक्विड वाटर हैज ओशन हैज बीन कंफर्म. इनफैक्ट यूरोपा पे अर्थ से ज्यादा पानी है. इट इज काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग. इट हैज मोर वाटर देन अर्थ. एंड अपने पानी में तो आपको ऑलरेडी पता है कितनी ज्यादा लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो the opportunities are endless to find out whether in a liquid water could life have started independent, मतलब वो अर्थ से एकदम अलग है. तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई होगी एंड एग्जिस्ट करती है. एंड नॉट जस्ट बैक्टीरियल लाइफ, इट कुड बी दैट इट इज एज कॉम्प्लेक्स एज octopus or any squids or things like that. We don't know. So there is a mission that is going, but the mission is mainly going to orbit. वो लैंड नहीं करेगा. जितना आप दूर जाते हो सन से, उतनी आपकी एनर्जी लेवल भी कम हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज मिशन जो होते हैं वो सोलर पावर्ड होते हैं. तो मार्स तक ही आप जब तक जाते हो तो मार्स तक सन की रेज बहुत वीक हो जाती है एंड आपके पास बहुत कम एनर्जी होती है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं, न्यूक्लियर प्रपल्शन यूज करते हैं. न्यूक्लियर प्रपल्शन लेकर के आप वहां तक जा सकते हो, बट वी आर स्टिल वर्किंग आउट द टेक्नोलॉजी टू लैंड ऑन अ सरफेस, टू ड्रिल 20 किलोमीटर्स डाउन एंड वहां से सैंपल निकालना, कलेक्ट करके एनालाइज करना. इट इज नॉट वेरी straightforward. It is quite a difficult thing to do. We can always take the samples from the water showers that sometimes yes, crack up from the surface. Correct. आपने लगता है अपना पूरा होमवर्क करके आए हो. You're just testing me. So these are missions. Yes. So there was a mission called Cassini spacecraft that did exactly that, and now they're planning to fly similar missions. तो ये जो icy moons हैं, इनके अंदर से जो लिक्विड वाटर है वो एस्केप कर रहा है, एंड इट इज डूइंग दैट थ्रू क्रैक्स. इनके साउथ पोल पर, मून्स की जो साउथ पोल जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे हम लोगों को क्रैक्स मिले हैं. दे हैव बीन कंफर्म्ड, एंड इन क्रैक्स के थ्रू पानी जो है वो रेगुलरली स्पाउट आउट कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ गीजर. इट इज काइंड ऑफ कमिंग आउट. तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, कि rather than having to drill, आप वहां पे जाओ एंड गड्ढा खोद के आप बर्फ के अंदर से इतना निकालो, उससे अच्छा वो ऑलरेडी पानी निकल रहा है. तो यू जस्ट फ्लाई थ्रू that particular spray that is coming out, and जैसे आप फ्लाई कर रहे हो, वो जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं बेसिकली आइस, क्योंकि क्या होता है कि पानी जब बाहर निकलता है तो वो स्पेस में आ रहा है. तो स्पेस पे आते आते वो वैक्यूम जो है, वैक्यूम की वजह से वो एकदम फ्रीज हो जाता है. इट बिकम्स आइस क्रिस्टल्स. तो इन अ वे यू आर कलेक्टिंग द आइस क्रिस्टल्स एंड कमिंग बैक. बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आपका स्पेसक्राफ्ट इतने स्पीड पे जा रहा है, यू आर गोइंग एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड. एक सेकंड में 10 किलोमीटर आप पार कर रहे हो, एंड दोस पार्टिकल्स दैट आर कमिंग आउट, दे आर कमिंग आउट एट से 1 किलोमीटर पर सेकंड. इट इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू, अगर आप स्टेशन पे खड़े हो और एक ट्रेन आ रही है, इट इज ट्राइंग टू किस अ ट्रेन. यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डैमेज दैट कैन डू. सो द इम्पैक्ट इटसेल्फ, जो आइस निकल रहा है वो इम्पैक्ट करके वो इमीडिएटली डैमेज हो सकता है. आपका स्पेसक्राफ्ट ना भी डैमेज हो तो आपका जो सैंपल है वो डैमेज हो जाएगा. So it is not a very easy thing to do. So this is our work. This is what we are trying to do. We are kind of coming up with different ways. Which are coming, and I have no idea what people are asking because मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में. So one of our viewers is asking, sir, tell something about Ahuna moons and cryovolcano in Ceres. Okay, I don't know about it. तो वोल्केनो जो होता है, हम लोग वोल्केनो जब इमेजिन करते हैं, हम लोग ज्यादातर समझते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, इट इज लाइक अ हॉट रेड लावा दैट इज काइंड ऑफ ब्यूइंग आउट. तो volcanoes don't always have to be hot. You can also have a cooled kind of liquid that is coming out from the under surface and it is kind of flowing out. तो सीरीज जो है और ऐसे काफी सारे अदर वर्ल्ड्स हैं, दे आर फर्दर अवे. मतलब ये प्लूटो के पास है सीरीज, जो एक मून है, एंड वहां पर हम लोगों को एक्टिव जियोलॉजी पाई गई है. मतलब वहां का जो सरफेस है ओवर द इयर्स. Okay, Siddharth is stuck again. Guys, I am so excited that you're asking such interesting questions जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, and we have such a brilliant person on the show today who's telling us. And hello, hi, you're back. Hi, sorry. No problem. I think
I don't know, I'm facing some internet issues today. I was saying कि these are all different geological processes that are formed, and volcanoes are very exciting to study because वो भी जिस तरीके से hot springs होते हैं, volcanoes जो होते हैं वो जमीन के नीचे का जो subsurface elements है वो बाहर लेकर आते हैं. तो जब भी हम मार्स पर भी हम लोगों को volcanoes दिखी हैं. इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट volcano है वो मार्स पर है. It is almost Olympus Mons उसका नाम है. It is 24 kilometers high. It is 3 times higher than Mount Everest also. It is a massive, very big volcano. So I remember I had the last scientist on my show was Karthik, and he was telling us about this volcano, and he gave us a very interesting fact that when you're sitting at the bottom of this volcano, you can actually see shooting stars going down under you. Really? It's pretty interesting. On Mars, हाँ. Because वहाँ पर atmosphere नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा incoming meteorites दिखेंगे that are coming in and striking you. And it is such a massive volcano. उसका जो center cone है वो ही इतना बड़ा है. तो हम लोग मतलब Earth पर अपने जो features देखते हैं, बाकी planet पे वो features almost 3 to 4 times बड़े होते हैं, 5 times बड़े होते हैं. तो when we put it to scale, हम लोगों को realize नहीं होता है, but when we put it to scale, they are massive in size. Right. Recently, there was a news about finding life on Venus. We have found some kind of a material. So I am not educated on this subject. Please tell us more about it. हाँ, तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर आप समझेंगे, डायरेक्टली देखेंगे तो इतना गर्म है, वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है कि आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे लाइफ आज के टाइम में एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं. लेकिन अगर आप सरफेस से थोड़ा उठेंगे, वीनस के क्लाउड्स में जाएंगे, तो वहां पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो अर्थ लाइक है. जैसे अर्थ पे टेम्परेचर है वैसे ही वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर है. तो वहां पे एक फॉस्फीन गैस, जैसे कि हम लोग अमोनिया गैस देखते हैं, हीलियम गैस देखते हैं, तो फॉस्फीन एक गैस होती है जो कि फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन से बनती है, PH3. तो ये गैस हमें पाई गई वहां पे. एंड अर्थ पर ये गैस जो है ये नॉर्मली जिन जिन तरीके से बनती है, हमने वो सारे तरीके रूल आउट कर दिए हैं कि वीनस पे वो कैसे बन रही है गैस. एंड जो ओनली तरीका हम लोगों को अभी दिख रहा है, ओनली प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फीन जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, वो बैक्टीरियल प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फीन है. कि जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जब बॉडी डिकम्पोज होती है, कोई भी मतलब डेड एनिमल्स की बॉडीज होती है, जब वो डिकम्पोज होती है, उसमें से फॉस्फीन गैस नॉर्मली निकलती है. तो बैक्टीरिया जो होता है वो रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, वो बेसिकली गैसेस प्रोड्यूस करता है. बिकॉज बैक्टीरिया क्या है, जैसे हम भी कुछ चीज खाते हैं तो वी हैव वेस्ट प्रोडक्ट. सो बैक्टीरिया डज द सेम थिंग. व्हेन इट कंज्यूम समथिंग, इट रिलीजेस गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. मीथेन कुड बी अ गैस. सिमिलरली फॉस्फीन एक ऐसी गैस है. तो ये जो गैस हमें मिली है फॉस्फीन, इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स, कंफर्म नहीं हुआ है, इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी कि वहां पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस. तो ये एक बहुत ही बड़ी एक डिस्कवरी थी जिसकी वजह से मतलब बहुत हलचल मच गई थी साइंटिफिक कम्युनिटी में. एंड अटेंशन थोड़ा वीनस की तरफ आ गया है कि मतलब हमने वीनस और एक्सप्लोर करना है. बिकॉज वीनस भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैंने मार्स के बारे में बताया, वीनस भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे भी जो टेम्परेचर एंड प्रेशर था सरफेस पे, वो अर्थ के तरह था. वीनस एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर. दे वर बोथ फॉर्म्ड, उनका एज रिलेटिवली सेम है. अगर आप साइज भी देखोगे, दोनों बहुत ही सिमिलर है साइज में. तो इसीलिए इतना हम लोग रिसर्च कर चुके हैं कि वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सरफेस पे पानी था वीनस के. इट हैड सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक. दे माइट इवन हैव बीन पीपल लाइक अस, हु नोस, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्लैनेट. तो एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड इन क्लाउड. एक तरीके से मिस्ट्री है, वो क्लाउड से कंप्लीटली कवर्ड है, तो हमें दिखता नहीं है. वेरएज मार्स अगर आप देखोगे टेलीस्कोप से भी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट सम फीचर्स. वेरएज वीनस यू विल नॉट. इट इज कंप्लीटली कवर्ड इन क्लाउड्स. तो द डिस्कवरी ऑफ फॉस्फीन वाज क्वाइट एक्साइटिंग. एंड अभी भी मतलब काफी रिजल्ट्स मतलब एनालाइज हो रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो गैस कैसे प्रोड्यूस हुई थी. एंड मे बी इन द फ्यूचर और मिशन जाएंगे टुवर्ड्स वीनस टू स्टडी इट. Okay, so this is not related to science, but I recently read somewhere that Russia is claiming that Venus is Russia's planet. वहाँ पे सबसे पहले Russian probe गए थे. That's why they're claiming. Is it right? It is correct. ऐसा होता है क्या साइंटिफिक कम्युनिटी में कि आप बोलते हो ये तो मेरा प्लैनेट है? नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एंड में कोई उसका इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज वन साइडेड क्लेम. मतलब यस, इट इज ट्रू कि रशिया ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस भेजे थे. इनफैक्ट ऐसे मिशंस भेजे थे कि आज के टाइम में कोई बना नहीं सकते.
मतलब देयर वर सम मिशंस व्हिच लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ वीनस, 1 घंटा ऑपरेट हुए, लेकिन जब रशिया टूटा, इट वाज कॉल्ड सोवियत यूनियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब उसका ब्रेकडाउन हुआ, ऐसा बहुत सारा लिटरेचर था, डिस्कवरीज थी जो कि मतलब डॉक्यूमेंट नहीं हुआ ढंग से, एंड मेनी ऑफ इट गॉट इवन बर्न। हमें आज भी नहीं पता कि वो मिशंस कैसे बने, कैसे सक्सेसफुली कंडक्ट हुए। तो इट इज ट्रू कि रशिया ने बहुत काम करा वेनस पे, बट टू से कि दैट दे क्लेम अ स्टेट इन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, दैट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल ट्रीटी है which prevents countries from claiming any ground or any space outside of Earth. And most of the countries जो United Nations के part है, they are assigning signature, have already signed the signatures for that treaty. So just like on international waters, हमारे Earth पे जो international waters हैं, no country can claim it. They are not owned by anyone. So space is something similar to that. All the planets and resources are similar to that. But you don't know. अभी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, वापस एक तरीके से स्पेस रेस शुरू हो रही है धीरे धीरे बिटवीन चाइना, यूएस मेनली, एंड दे आर बोथ वर्किंग टुवर्ड्स मिशंस ऑन द मून। तो देयर माइट बी अ पॉइंट कि जब दोनों के वहां पे बेसेस होंगे, एंड देयर माइट बी, एंड इवन इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द मून, दैट देयर माइट बी सम क्लेम कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया तुम्हारा है, वी डोंट कम इनटू आवर एरिया, वी डोंट कम इनटू आवर एरिया। तो वो तो हम लोग का, हम ह्यूमंस ही ऐसे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वी स्टार्ट creating these kind of borders. And I also feel that हम human being की tendency ही ऐसी है, इसलिए शायद हम लोग aliens को भी इतना demonize कर चुके हैं. You see so many alien movies, aliens हमें abduct करने आ रहे हैं, हमें मारने आ रहे हैं, अर्थ को खत्म करने आ रहे हैं, सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही होंगे सब हमारे जैसे, हो सकता है कि कुछ अच्छा करके जाए. बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन एलियन मूवीज जब शुरू हुई थी, ये हुई थी अराउंड 30s 40s के टाइम पर, 1930s 40s पे। उस टाइम पे यूएफओ साइटिंग्स बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे एयरक्राफ्ट बहुत तरह के डेवलप हो रहे थे, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, अलग अलग तरह की मिसाइल्स डेवलप हो रही थी, तो लोगों को साइटिंग्स दिखती थी। तो वहां से लोगों को इमेजिनेशन बना कि यस एलियंस होंगे। उसके पहले भी मतलब काफी लोग सोचते थे कि मार्स पे जो लोग रहते हैं वो आके अर्थ पे इन्वेट करेंगे, लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक तरीके से आई थिंक कॉमन एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग कोई भी चीज को थ्रेट मानते हैं, कि बाहर से कोई चीज अगर आएगी तो हमें अटैक करेगी, एंड हम हीरोज हैं स्टोरी के, हम ही हैं जो उनको डिफीट करेंगे, एंड हमारा उनको डिफीट करना एक अच्छी चीज है। तो आई थिंक ये कॉमन ह्यूमन साइकी है टुवर्ड्स थिंकिंग लाइक दैट। वेयरएज हम लोग के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है टू थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, चाहे वो गॉडजिला हो या हमने डायनासोर्स को भी मतलब इविल बना दिया कि वो मतलब हम सबको evil बना. So we always want to बनाए जा रहे. Maybe it just shows how we are, because we are the real demons on planet Earth. We have altered the planet हमारे यूज के लिए. I mean the fact that आज सारी की सारी वाइल्ड लाइफ एक तरफ और जितने एनिमल्स हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर आवर ओन यूज, दे आउटनंबर द वाइल्ड लाइफ. हमने पूरे प्लानट को ऑल्टर कर दिया. अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे प्लानट अर्थ. बट ये कहानी कोई सुनना नहीं चाहता ना. Nobody wants to hear humans as evil. हमें चाहिए कि हम हीरोज हैं, we are the ones who are successful. आपको क्या लगता है हम जो स्पेस पे चल रहे हैं, कितने और साल बचे हैं अर्थ के पास, हमारे पास? आई थिंक अर्थ तो कहीं नहीं जा रहा, हमें पूछना चाहिए हमारे पास कितने साल बचे हैं, बिकॉज अर्थ तो रिकवर कर जाएगा, बट आई डोंट नो अबाउट अस वेदर हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू सर्वाइव और नॉट. तो विद द करंट सिनेरियो आई थिंक जिस तरीके से हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, मैं एक रिसेंट स्टडी पढ़ रहा था कि 2050 तक एंड 2080 तक, इनफैक्ट 2080 तक हम लोग जो फर्टाइल लैंड है हमारे प्लैनेट का वो यूज अप कर चुके होंगे. जिस तरीके से इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया है कि दे आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एनी मोर, and there is a massive amount of shortage of food in the world. So I think that is the biggest threat right now to us, कि धीरे धीरे हम लोग पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड जो फर्टाइल लैंड है वो खत्म होता जा रहा है. वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, because of the changing climate, we are not able to sustain ourselves. The weathers are changing, storms are coming, dry seasons are getting drier, forest fires हो रहे हैं, all those things are happening. So I think in the next 100 years things are going to get very very difficult for humanity अगर हम इसी तरीके से चलते रहे. मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे. वो इतनी छोटी सी लैंड को लेके 2 कंट्रीज आर फाइटिंग. अभी इंडिया चाइना वॉर सिचुएशन चल रहा है. टर्की इज फाइटिंग विद ग्रीस. एवरीवेयर पीपल आर जस्ट फाइटिंग. व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड दैट वी लिव ऑन सच अ स्मॉल टाइनी प्लैनेट? वी ऑल आर वन रेस. We are just humans. We need to protect our house, our own earth, our own planet.
but it's upsetting, and I really wish कि हम लोग ऐसे लाइव सेशंस करते रहे जिससे कि if not a big change, but at least one person is also inspired, to save or do something for our planet, then it is my job is done. And I'm really happy that you came on the show to talk and discuss about all of this. You're also doing something very interesting for climate change Yeah. in Ladakh. So हाँ, Yeah. तो लद्दाख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख इज अ वेरी प्रिटी प्लेस, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवीज बनती हैं, बट वो हम साइंटिस्ट लोग के लिए भी बहुत एक्साइटिंग जगह है। उसका एक ये कारण है कि मार्स का जो पास्ट था, मार्स का जो मतलब एंशिएंट टाइम था, जब वो एक अर्थ लाइक प्लैनेट था, वो आज के लद्दाख से बहुत सिमिलर है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जो कि ऑल्टीट्यूड में बहुत हाई है, मतलब ऑलमोस्ट 4500 मीटर्स, 4.5 किलोमीटर, जहाँ पे हम लोग अभी मुंबई में बैठे हैं, 2.5 किलोमीटर हाई जगह है। एंड ऐसे ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो स्पेस से आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, मतलब इतना कम रेनफॉल होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब पानी कभी एटमॉस्फेयर से आया ही नहीं। तो इट इज अ कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड ड्राई डेजर्ट, एंड इट इज वेरी प्रिस्टीन सो फार। वहाँ पे मतलब ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम है रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब ले और कुछ टूरिस्ट साइट्स को अगर आप छोड़ दो, तो जो बाकी जो लद्दाख की रीजन है वो बहुत ही मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज ऑफ क्लाइमेट। वहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है, टेम्परेचर का भी चेंज होता है, तो वो धीरे धीरे दिख जाता है। तो मेरा जो इनिशियल पर्पज रहा है वो वहाँ पे हम लोग मार्स अगर कुछ स्टडी अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं। बट हमने ये बहुत जल्द रियलाइज करा कि अलोंग साइड दैट दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज स्टडीज, बिकॉज पिछले 20 साल में जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है एंड जितना रेनफॉल चेंज हुआ है, वो वहां पर क्लियरली दिख रहा है, विजिबली दिख रहा है। इट इज शोइंग साइंस। हम लोग का जो साइट है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वी आर सेटिंग अप अ रिसर्च स्टेशन देयर। इट इज गोइंग टू बी, अगले साल से इट इज गोइंग टू बी एक्टिव, and we will be giving an opportunity to people, general people, to come on tours. हम लोग वहाँ पे साइंस टूर्स अरेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जैसे ताजमहल जाते हो, आपके पास एक गाइड होता है जो उस जगह की हिस्ट्री समझाता है कि शाहजहां ने बनाया, ये सब किया। तो हम लोग साइंटिफिक टूरिज्म स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर में अगर आप जाओ तो ये नहीं कि आप बस एक प्रिटी फोटोज ले लिए लेक के साथ, हिल्स के साथ और आप आ गए, बट वी वांट जो वहाँ पे आदमी आ रहा है वो वहाँ पे एक अवेयरनेस समझ ले कि ये कैसी जगह है, ये बनी कैसे। लद्दाख, हिमालय ऐसे बने जब इंडिया एशिया में जब रैम किया, तो वो जो एरिया जो उठा हवा में, वो पानी के नीचे था, इट वाज अंडर द ओशंस। तो व्हेन इट रोज अप, यू आर स्टिल सीइंग वहाँ पे ओशन के सेडिमेंट्स अभी भी दिखते हैं, वहाँ पे ऐसे फॉसिल्स दिखते हैं जो कि पानी के अंदर होने चाहिए थे। आप हिमालय में ऐसी फॉसिल्स उठा रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि ये फॉसिल यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो पानी में होना चाहिए। तो इसकी स्टोरी क्या है, एक टाइम पे पानी के नीचे था एंड नाउ इट इज कम्प्लीटली अप। So we are going to arrange those kind of travel packages for people who are responsible, who want to experience first hand climate change का क्या इफेक्ट होता है, वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सॉइल कैसे चेंज हो रहा है, जो वहाँ पे एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स जो ग्रो होते थे उनका सीजन शिफ्ट हो गया है एंड वो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे अब उग रहे हैं। तो ऑल आर दीज, लाइक देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल चेंजेस दैट वन कैन सी। तो हम लोग का साइंस तो होगा ही, विल बी गोइंग, हम लोग समर में नेक्स्ट ईयर वहां पर जाएंगे, हम लोग अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, but we will also be having opportunities for people, who will be part of your show, such as even yourselves and others, who can actually be part of a team which is going there, which is led by a scientist and given an understanding कि यहाँ पे exactly मतलब what is it that is changing in this kind of an environment. And I think this will be the first time something like this is happening in India. And it will make people feel a bit responsible also, in my opinion, कि ये जगह बस ऐसा नहीं है कि आपने पैसे बचाए, गए, 2-3 फोटोज लिए, खाना खाए, मैगी खाई, आपने हाई पास पर इंस्टाग्राम कर दिया, सेल्फी ले ली और आ गए। आई थिंक वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड। अगर हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें अपने शेल से बाहर निकल करके वी वांट टू डू समथिंग, तो that will soon be announced. I'll share the link with you. Within the next couple of months, we'll be announcing it. It's very interesting, and I think it's high time we need to do such things, because इंडिया क्या है, स्पेस रेस में तो आगे है। अभी वी आर वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज जो स्पेस रेस में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जनरल लोगों के पास इतनी अवेयरनेस आई नहीं है। And I'm so proud of you that you are doing this. I am excited, and I know so many people who are also excited to do
such kind of a trip, and also it will be like a good change. जो स्पेशली यूथ है ना, उसको एक रिलेटेबिलिटी मिलेगी कि हाँ भाई, हमारी कंट्री भी है जो कुछ कर रही है। नहीं तो सिर्फ हम चंद्रयान की वीडियोस ही देखते हैं और वहां पे खत्म हो जाती है पूरी स्पेस रेस हमारी। That's true. मतलब it should go beyond patriotism. I think we should also understand कि हम लोग स्पेस को ना बहुत ही डिस्कनेक्टेड तरीके से देखते हैं कि स्पेस वो है, स्पेस, अर्थ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारा प्लैनेट इज वेरी मच कनेक्टेड इन स्पेस। जब आप स्पेस जाते हो, आप अर्थ को देखते हो, आप समझते हो कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो चेंज लद्दाख में हो रहा है वो आज आपको बे ऑफ बंगाल में दिख रहा है, आज आपको मुंबई में दिख रहा है। जो साइक्लोन हमारे मुंबई में आने वाला था, जो फॉर्चुनेटली नीचे से चला गया, वो क्यों आया? अरेबियन सी में कभी साइक्लोन्स इतने फॉर्म नहीं होते। कैसे साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं? जो लोकस्ट, इतने सारे लोकस्ट मेनलैंड इंडिया में आ गए थे, इतनी बड़ी न्यूज थी। न्यूज चैनल्स का भी होता है, जब स्टोरी चलती है तो समझाते हैं, उसके बाद आगे पीछे का कुछ नहीं समझाते। एवरीथिंग इज लिंक्ड। ऑल दीज unusual things that are happening because we are changing this planet. तो हम समझते हैं कि हम अपने कोकून में बैठे हुए हैं, एंड दूर पे एक डॉक्यूमेंट्री देख करके भाई ठीक है, स्पेस हो गया, आपने डिस्कवरी पे कुछ देख लिया, एंड देन वी गो बैक टू आवर लाइव्स। बट the sooner we realize कि all of these things are connected, we're all part of the same world ecosystem, I think the faster we will be able to have that awareness कि हमें इस चीज को कुछ समझना है, कुछ करना है। वही एक मेरा मतलब एक मकसद है, to make people realize कि things are not out of reach. ये सब चीजें हमारे within reach है। We just have to become connected and work towards understanding it. And we shouldn't shun ourselves कि यार साइंस तो यार ठीक है, वो मतलब मैं भी वैसे ही था, मतलब हम लोग सब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम से आए हैं, मैं कोई अलग खाना खा के नहीं आया हूँ, एवरीबडी इज द सेम। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस, हमारे तरफ से भी गलती है, साइंटिस्ट डोंट पुट इन इनफ एफर्ट टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग, but at the same time the public also has to understand ki this is something which is very very important. It is no longer something, oh it was very interesting to see. अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि हमें एक्ट करना है। we have to all consciously increase our understanding of what all things are happening. So with that I will really need your help and your support to I am all there. all the people. I'm all there. It's my mission to make science cool in our country, and I'm so proud of people like you कि आप लोग आते हो। और मेरे को इस बात की और भी खुशी है कि आपने मेरे शो पे हिंदी में आके बात की, क्योंकि आई थिंक हिंदी इज द लैंग्वेज जो अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है, एंड विद दिस लैंग्वेज वी कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ, व्हाट यू आर डूइंग। हैट्स ऑफ। Whenever you need my support, anytime, I'm all there to help you out. Thank you so much. Thank you so much. I'll be honored. Yeah, okay. So now, क्योंकि आपने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अर्थ की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ को एकदम तहस नहस कर चुके हैं, लेकिन ये काम सिर्फ अर्थ में नहीं हो रहा है, स्पेस में भी हो रहा है। टुडे व्हेन आई वाज वाचिंग दिस न्यूज, there's so much space debris out there. कोई अगर एलियन आएगा भी इंटेलिजेंट लाइफ तो बोलेंगे अरे कितने गंदे लोग हैं, तो क्यों जाएंगे उनके प्लैनेट पे हम? That is true. That is absolutely true. So इसको एक नया फील्ड है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, जिसके अंदर में हम लोग कॉन्शियसली ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाए तो वो अर्थ में वापस ऑर्बिट करके बर्न आउट हो जाए। बिकॉज स्पेस एक ऐसी चीज है, वहां पे अगर आप जितनी चीज लॉन्च करोगे, it will remain in orbit because there is no atmosphere, there is no wind to kind of disintegrate it. तो आज से 50 साल से हम लोग इतने सारे लॉन्चेस करे हैं, many failed, many were successful, and it has led to a lot of debris. Even right now हर हफ्ते कम से कम 10 से 15 लॉन्चेस होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ। Even during COVID there were as many launches that were taking place. Some are civil launches, some are military launches. तो कुछों के बारे में हमें पता भी नहीं चलता because they are classified missions, जो US, China, and by the way US, China are the most party to this debris problem, and now they are the ones who are talking about it कि मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इंडिया ने एक लॉन्च करा होता तो एंड एवरीबडी बिकम्स कि यार इंडिया ने क्यों लॉन्च करा। तो दैट इज ट्रू, एक स्पेस डेब्री क्रिएट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इट इज समथिंग विच इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, स्पेस डेब्री भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो हम सबको इस चीज को टैकल करना है। जिस तरीके से हमारे ओशंस हैं उसी तरीके से स्पेस भी है, एंड इट इज अ नॉन रिवर्सिबल थिंग। इसको मतलब साफ करना उतना आसान नहीं है। अभी काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, but it is not very straightforward. Sorry, we lost you. And we have like 2-3 more minutes before Instagram shuts the session. So we want you to quickly complete the answer with the last question.
ठीक है, can you please repeat the question? I didn't hear it. So no, you were talking about space debris and how we are trying to sort the situation. स्पेस डेब्री का एक ही सोल्यूशन है कि स्ट्रिक्ट और हम लोग लॉज को स्ट्रिक्ट करें कि जो भी लॉन्चेस हो रहे हैं उनको ट्रैक. Okay, so the internet is giving up. Okay, go back. I don't think you All want me to right, answer this Siddharth. question. So I don't think they thank want you me to answer so this question. much for being with us. You were really like a bundle of knowledge, and I think this was the most knowledgeable session of Vartalap with Aakriti. I had a great time talking to you, and I'm so proud of you for everything that you're doing. अगर यहाँ पे कोई interested है, can I invite you to, maybe direct message you if they want to get associated with the kind of work that you're doing? डेफिनेटली. तो एक तो हम लोगों का जो रिसर्च सेंटर का वेबसाइट है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन सब्सक्राइब टू इट. सो व्हेनेवर वी अनाउंस फॉर एग्जांपल द लद्दाख प्रोजेक्ट, हम उसको अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इट टुगेदर. So we're preparing for next season, June. So agar students are interested, or even general public, it's not only for students. People are interested to go to Ladakh and experience that. I'll share that link with you. People can subscribe to it, and yeah, people are free to post questions and ask me as well. I'm there on Instagram as well as on Twitter and Facebook as well. So happy to take Yes. questions. Thank you so much, Siddharth. You were fabulous. Fabulous, really. Thank you so much. I That's had the a great word. time as well. Thank you so much. It was great talking to you. Yeah, and it was a pleasure to have you on वार्तालाप with Aakriti. हम चाहते हैं आप प्लीज वापस आए, आते रहिए शो पे, हमें ऐसे एजुकेट करते रहिए. We need people like you. We need the Indian version of Neil deGrasse Tyson. Thank you so much. And मेरे Instagram पे मेरी previous Ladakh trip की highlight है. So those who are interested to know more about Ladakh, they can also watch that highlight. I've saved it on my Instagram account. Yes, I see a lot of messages pouring in, and I will edit this video and I'll share all the links with you, so you can also share it with your friends. We are on Spotify, so people Definitely. can listen to us also. Definitely. And Sounds good. thank you so much. Really, thanks a lot Thank for you. doing this. Take care. Take care. Have a nice evening. Bye-bye. You too. Have a nice evening. Bye-bye. So that was the astrobiologist Siddharth Pandey on the show, and my God, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, मैंने ये session किया. Like, I love the conversation, and yeah, guys. So this was the 46th episode of Vartalap with Aakriti. Next weekend, I'll be back again with some interesting topics. I am glad that you enjoyed it, and many people stayed from the beginning till the end. If you want to see this video, you can come back on my Instagram channel. You can go on my YouTube channel. You can listen to us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, Castbox, Anchor, और भी बहुत 10 जगह ब्रॉडकास्ट करते हैं हम, ठीक है, तो आप देखना. And I hope you like this session, and please keep pouring in the love that you pour on us every day, every time. I love you all, and have a great weekend. Happy Dusshera! May all the good win over the evil on planet Earth and in the entire universe. And aliens are not necessarily evil. Okay? Bye.